हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Power and function of the state legislature. There is the most important here, the power and function of the state legislature. The first here is a point, law making function. What is the law making function here? The primary function of the state legislature, like a union parliament, is a law making. The state legislature is empowered to make a law on state list and concurrent list. The parliament and the legislative assembly have to the right to make the law on the subjects other mentioned in the concurrent list. But in case of contradiction between to the union and the state law on the object, their law made by the parliament shall be prevail. There is the most important here. The bill are the two types is the ordinary bill and money bill here present. Ordinary bill can be introduced in either of the house if the state legislature is the bicamerals, but is the money bill is the first introduced in the Vidhan Sabha. After the bill is passed by the both house, it is sent to be governor for a assent. The governor can be sent back to the bill of the reconsiderations. When this bill is passed again by the legislatures, by the governor has to be give his assent. You have a read when to the parliament is not a session if there is a necessity of the contained law. The president issue ordinance of similarly the governor can be issue the ordinance on the state subject when the legislature is not a season. The ordinance of have to the force of the law. The ordinance issue the late before the state legislatures when it is assembled. It is a case to be operations after the expire of 6 weeks unless rejected by the legislatures earlier. The legislature pass a regular bill to be become a law and the replace the ordinance. This is usually done with the 6 week after the assemble of legislature. The next topic here is a financial power. What do you mean to financial power here? The state legislature is a keep a control over to finance of the state. A money bill is introduced first on the Vidhan Sabha. The money bill include authorization of expenditures be incurred by the government and imposition of the obligations of the taxes. A browsing act to the bills is there introduced by the minister on the recommendations of the governor. The money will not be introduced by the private member. The speaker of the Vidhan Sabha is certifies that is a particular bill is a money bill. After a money bill is passed by the Vidhan Sabha, it is sent to be Vidhan Parishad. It has a return bill is within the 14 day without any recommendations. The Vidhan Sabha may be either accept or reject it is a recommendations. The bill is deemed to have been to pass by the both house. After this stage, the bill is sent to the governor for the assent. The governor cannot be withhold or send a money bill or induce. The next topic here, control over the executive. There is a most important topic here, control over the executive. Like the union legislature, their state legislature keep control over the executive. The council of ministers is responsible for a Vidhan Sabha collected and remain in the office so long as it enjoy. The confident of Vidhan Sabha, the counseling is removed if there is a Vidhan Sabha is adopted as a vote of non-confidence or when it is rejected to the government bill. In addition to be no confidence motion, the legislatures keep a check on the government. The next here, the electors are the function. What is the elector function here? The elected member of Vidhan Sabha are member of the elector colleges for their election of the President of India. Thus, as said to the election of the President of Republics, there is a member of Vidhan Sabha also elected to member of Rajya Sabha from their respective state. One-third member of the Vidhan Parishad, if it is acceptance in the state, are also elected by the member of Vidhan Sabha. In all these elected member of the Vidhan Sabha assemble cause their vote to the accordance with the single transferable voter system. The next topic is a constitutional function. You have learned about the procedure of the amendment of constitution and the amendment of required special majority of the each house of the parliament and ratification by the not less than half of the state ratings of federal subject.
The resolution for the ratification is passed by state legislatures with the simple majority. However, our constitutional amendments cannot be initiated in the state legislatures here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राज्य विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने संबंधी कार्य जो है यहीं पे होता है, यानी सारी बातें जो है यहीं पे बनाई जाती है। कानून संबंधी सारे कार्य जो है राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कहते हैं संसद की तरह राज्य विधानमंडल का कार्य भी कानून बनाना है और इसके राज्य सूची तथा समयवर्ती सूची में वर्णित भी किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी है। संसद तथा राज्य विधायक दोनों को जो है समयवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि एक ही विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनाए गए कानून माना जाएगा। विधायक दो प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए तो साधारण विधायक और धन विधायक। तो ये दोनों जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके विषय में हमने जो है चैप्टर में भी किया था, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत की जाती थी, यानी जो मनी बिल हमने पढ़ा था वो हमारा नेशनल लेवल पे भी था और यही चीज़ जो है स्टेट लेवल पे भी है। परंतु धन जो है इसमें देखा जाए साधारण विधायक दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, परंतु धन विधायक पहले विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है और दोनों सदनों में विधायक पारित होने के पश्चात राज्यपाल के पास उसे स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल चाहे तो विधायक जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकता है, परंतु यदि विधानमंडल इसे पुण्य पारित कर दे तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करनी ही पड़ती है। आप पढ़ चुके हैं कि यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो और किसी कानून के नियंत्रण आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है और इसी प्रकार विधानमंडल के सत्र को न होने की स्थिति में राज्यपाल भी किसी राज्य विषय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश में कानून का बल होता है और जारी किया गया जो है अध्यादेश को जो है विधानमंडल की बुलाई गई बैठक में रखा भी जाता है। यह बैठक बुलाए जाने के 6 सप्ताह बाद निष्पादित हो जाती है, यानी ये खत्म हो जाती है 6 हफ्ते के बाद, यदि विधानमंडल इसके जो है इसे पूर्व अस्वीकार न कर दे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वित्तीय शक्तियां। देखिए, विधानमंडल राज्य के वित्त पर नियंत्रण बनाए रखता है। कोई भी धन विधायक पहले विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधायक में सरकार द्वारा व्यय की जाने वाले धन की स्वीकृति, करों के लगानों तथा हटाए जाने वाले संबंधी प्रस्ताव तथा ऋण संबंधी प्रस्ताव आते हैं। ऐसे विधायक मंत्री द्वारा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधायक किसी सदस्य द्वारा निजी रूप में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। कोई विधायक धन विधायक अथवा नहीं, यह निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। विधानसभा द्वारा धन विधायक पारित होने के पश्चात विधान परिषद में भेज दिया जाता है, जिसे 14 दिन के अंदर पारित करके या बिना पारित किए विधायक वापस भेजना होता है। इस स्थिति में धन विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अब विधायक के राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि विधायक प्रस्तावित करने से पूर्व उसकी अनुमति ले ली गई होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कहते हैं संघ सरकार की तरह राज्य विधायक भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होता है और जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है मंत्री परिषद अपने पद पर बने रहते हैं। इसी केवल तभी अब जो है पदस्थ किया जा सकता है जब विधानसभा इसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा किसी सरकारी विधायक को रद्द करे। कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रश्न तथा जो है पूरक प्रश्न पूछकर काम रोके अथवा प्रस्ताव द्वारा अथवा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा विधायक कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। तो ये भी एक प्रावधान है जिसको कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो है सरकार की तरफ बनाया गया कुछ रूल रेगुलेशन है। उसके पश्चात हमारे समक्ष चुनावी संबंधी कार्य। कहते हैं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं और इस प्रकार वे भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी जो है हिस्सेदारी निभाते भी हैं। विधानसभा सदस्य अपने अपने राज्य से राज्यसभा के लिए संसदों का जो है निर्वाचन भी करते हैं। जिन राज्य में विधान परिषद है वहाँ इसके 1/3 सदस्य का निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। इन सभी निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमित मत प्रणाली के आधार पर मतदान भी करते हैं। अगर हम बात यहाँ पर कर ले संवैधानिक कार्य का तो ये साफ हो जाता है कि
आप भारतीय संविधान में संशोधन जो है संबंधी प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। संसदीय विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का जो है अभिसमर्थन होना चाहिए। अभिसमर्थन का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है और विधानमंडल के जो है अभिसमर्थन के बिना संविधान में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं माना जा सकता है।